Yes, hello friends, welcome back to the channel, The Logic of Studies. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to complete Cell the Unit of Life ka the main topic, which is nothing but endoplasmic reticulum. Yes, we are going to cover up endoplasmic reticulum topic. So usse pehle what you just have to do is you just have to like, you just have to share, and you have to subscribe our wonderful channel, The Logic of Studies. Hope so you you must all have done it, right? You just have to what? You just have to like, share and subscribe The Logic of Studies channel. So jaldi se press the bell icon, okay? And jaldi se hit a like, right? So if you have any doubt regards the topic or anything which you want to ask from me, you can just go to this comment section and you just post your comment what you have to ask to me, or agar koi doubt ho, so that also you can comment it down, because I am every time active over there and I am very excited to answer all your questions. So do comment there and do enjoy the video and पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस वीडियो में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर जो है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, इन विच वी ऑलरेडी कंप्लीटेड विथ प्रोकैरियोट्स, राइट? हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है. सो अगर आपने नहीं देखा, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो थ्रू आवर चैनल, राइट, द लॉजिक ऑफ स्टडीज़, एंड देयर यू विल गेट द वीडियोज विच आई post. Otherwise you may also get in the comment section, I mean in the comment section, there I will pin it. So let's move ahead without wasting much time, right? So today which we are going to cover up is not only eukaryotic cell, but yes, we are also going to cover up about endoplasmic reticulum. Yes, we are also going to cover up this, so please watch it till end. So first we will begin up with eukaryotic cells. हमें पता है यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या होता है. यस, सो पहले तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, राइट? सो वी हैव राइबोसोम्स ओवर हियर, राइट? हम स्टार्ट हमेशा राइबोसोम से करते हैं, राइट? सो पहला राइबोसोम्स आ जाता है. किस में हेल्प करता है? येस, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये चैप्टर हमने 8th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, राइट? जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सारी चीज़ें हमने स्टडी की है, राइट? सो राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? सो नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रियन एक होता है तो माइटोकॉन्ड्रियन बहुत सारे हों, बहुत सारे कंसिडर करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, राइट? सो माइटोकॉन्ड्रिया, देन वैक्यूल्स, वी हैव लार्ज वैक्यूल्स, सेंट्रल वैक्यूल्स. हमने एक और चीज़ देखा था जो प्लांट्स में होता है, विच इज़ लार्ज वैक्यूल्स. एनिमल्स में होता है स्मॉल 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 वैक्यूल्स, बहुत सारे वैक्यूल्स, लेकिन कौन से? स्मॉल होते हैं. तो इससे क्या पता चल रहा है? विच टाइप ऑफ सेल इट इज? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स अ प्लांट सेल. कौन सा सेल है ये? प्लांट सेल. यू कैन सी द आउटर कवरिंग, you can see the chloroplast, right? You can see the large vacuoles. These all things define about what? These all things define about your plant cell. See the main thing, cell wall, green color pigments, these chloroplast, right? So these are all the hints which you get from the pictures itself, right? So if it in exams, if it comes like this, identify the cell, it's easily absorbable, right? You can directly observe it and you can just without any doubt, you can just clear it out which type of cell it is. So that's one type of observation where you can do it over here, right? Okay, so हमने देखा chloroplast है, plasma membrane we have cell wall which is made up of nothing but cellulose, right? cellulose से बने रहते हैं, hemicellulose से बने रहते हैं. but if we consider algae का जो वो होता है, ठीक है, एल्गे जो होते हैं, एल्गे के जो सेल वॉल होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक पैक्टिन्स, मैग्नेन्स, गैलेक्टिन्स. दीज ऑल आर द वेरियस कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम विच एल्गे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, राइट? लेकिन जो हायर सेल्स होते हैं, जो हायर टाइप होते हैं, उनके किसके बने रहते हैं? नॉर्मल सेल्यूलोज, दे आर हेमी सेल्यूलोज, राइट? तो वो सब देखेंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. यू जस्ट हैव टू रिमेन टिल एंड. सारे वीडियोस जो भी हैं चैप्टर से रिलेटेड, यू जस्ट हैव टू वॉच इट, ओके? कोई भी डाउट हो, आई एम ऑलरेडी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, राइट? नेक्स्ट यू हैव नथिंग बट गोल्जी कॉम्प्लेक्स. सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस द मेन थिंग, डीएनए क्रोमैटिन, राइट? न्यूक्लियोलस, right, where the ribosomes are stored, right? Ribosomes, they're prepared. Then endoplasmic reticulum. Yes, we are going to cover up this topic as well in this video, so be till end, fine? तो जितना जल्दी हम cover up कर लेंगे, that will be good enough for us, right? Time की wastage नहीं होगी. So let's try to do it very soon. Now first I will start up with what is eukaryotic cell means. हमने देखा prokaryotes में आ जाता है हमारा monera, means all the bacteria जो भी आ जाते हैं, the kingdom monera which comes, right?
but when we consider eukaryotic cells, we have different types of kingdoms, or not only kingdoms, but we have different types of organelles present in over there, right? प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि भाई उसमें तो सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है, उसमें सिर्फ राइबोसोम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, उसमें बाकी के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते ही नहीं हैं, राइट लेकिन यूकैरियोटिक का मतलब ही होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, जिसमें ट्रू सारे सेल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हो, राइट? सो दीज ऑल थिंग्स मीन्स टू से अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स, राइट? सो ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती है यूकैरियोट्स को, यूकैरियोटिक सेल्स को। या वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द सेकंड चैप्टर एज वेल। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद सेकंड चैप्टर विच इज सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अदरवाइज यू कैन कॉल इट एज बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो हम बहुत जल्दी वो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सारे किंगडम्स के बारे में, किंगडम मोनेरा से लेके किंगडम एनिमेलिया तक, वे एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दैट, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड वेरी क्विक एंड लेट्स फिनिश इट वेरी फास्ट, राइट? So cells in which the nucleus has a definite nuclear membrane. See the words. Nucleus, the word which I am speaking is very important, okay? So just remember all the words. Just remember all the points which I have wrote over here, right? Whatever I speak. So nucleus, nuclear membrane makes the eukaryotic cell. समझ में आ रहा है? तो ये सारे चीज़ें मिल के न्यूक्लियस, जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस हो, ठीक है, जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस हो, जहाँ पे membrane हो, न्यूक्लियर membrane हो, of course where it will be nucleus, जहाँ पे न्यूक्लियस होगा वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग होगी ही, राइट? तो ये सारी चीज़ें ही मिलके बनाती हैं यूकैरियोट्स को। फाइन, देन प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, सी द वर्ड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स जो जहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, वो सारी चीज़ें कहलाती है यूकैरियोट्स के अंदर। सी हाउ आई एम यूजिंग द टर्म टू डिफाइन यूकैरियोटिक सेल्स। फाइन, देन देखो एग्जाम्पल्स में सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट ले लो, एनिमल्स ले लो, फंगी ले लो, प्लांट्स ले लो, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट? एज पर देयर क्लासिफिकेशन, एज पर देयर क्राइटेरिया, एज पर देयर हैबिटेट्स, राइट? Then the next point which we are covering is that eukaryotic cells have different shape. They don't only have different shapes. See, if I take the example of any other kind of shape, such for example, see यहाँ पे ये rod like structure है, it's a complete not, it's a leaf like structure, right? rod like structure का hint मिल गया होगा, what can be the rod like structure? Yes, okay, let me make you understand. ये rod like structure हुआ, उसके अंदर these are something called as like this foldings which are made. Okay, just wait a minute. Yeah, these foldings, right? So ये जो होते हैं ऐसे structures जो पाए जाते हैं, where they are find it out, कहाँ पे ये मिलते हैं? These are nothing but mitochondrions का सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया का सेल होता है, ठीक है, which are rod shape. Then you have other type of nerve cells. nerve cells कैसे होते हैं? See, long होते हैं, right? nerve cells long होते हैं। तो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, उनके साइजेस, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वर्ड साइजेस, उनके साइज, सी दिस साइज एंड साइज कैन बी एनीवेयर, लाइक 1 to 10 माइक्रोमीटर्स भी होते हैं। येस, अब इसका सपोज कुछ मतलब कितना भी हो, सपोज लेट्स टेक अबाउट इसका सपोज 5 माइक्रोमीटर हो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है? एंड ये नर्व सेल्स से 10 माइक्रोमीटर सो लॉन्ग, नर्व सेल्स तो कितने बड़े होते हैं, यू कैन इमेजिन हाउ द बिग द नर्व सेल्स आर, राइट? सो दीज आर ऑल डिफरेंट साइजेस, शेप्स यू विल सी, राइट? देन दीज आर द फिजियोलॉजी, मतलब ये सारे अपने अपने एक फिजियोलॉजी पे दे ऑल वर्क्स, राइट? देयर आर सम काइंड ऑफ फिजियोलॉजी which prepares them, right, which handles them. So सबका सब सेल्स का अलग अलग फिजियोलॉजी होता है, and these all things make eukaryotic, ठीक है, ये सारे मिलके बनाते हैं द टर्म यूकैरियोट्स, राइट? सी टिपिकली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेन चीज़ें जो इन सेल्स में पाई जाती हैं, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, देन वी हैव ऑर्गेनल्स, ये सारी चीज़ें पाए ही जाते हैं। ये तीनों चीज़ें अगर जहाँ पे होंगी, दिस ऑल विल फॉर्म नथिंग बट योर eukaryotes. It's a very very important term. You can go through it once again if you want. Stop the video, pause the video and just read, okay, in your mind or loudly where everyone is comfortable. Okay, so ये सारी चीज़ें ही मिलके बनाती हैं हमारे किसको, यूकैरियोट सेल्स को. Very important question, very important points, right? Okay, now this is what we are going to actually cover up in this video, right? So हम क्या cover up करने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है, one of the organelle of eukaryotic cells. So मेरा question है कि are they present in their prokaryotic cells?
No, of course not. हमने देखा it's an organelle. Organelles are not present only. So how this will be present, right? So this is basically an open structure of cell. ठीक है, कैसा cell दिखता है? So if you will see carefully, there are different types of organelles, right? There are nuclear pores. There are ribosomes. There are cytoplasm. How they are spread, right? These all things. But there are various other types of things, such as, now for example, like you have cell membrane. We not only this, but it's मतलब कितने सारे चीज़ों से we have our cell organelles, right? मतलब कितने सारे cell organelles मिलके जो है एक cell complete करते हैं, whether it is of nerve cells, whether it is of bone cells, right? So now देखो, there is a something dot like structure. These are nuclear pores, right? These are what? These are nuclear pores. You can see here these small dots. So these are what? These are nuclear pores जो guarding का काम करते हैं. They helps in guard, right? They helps in guarding. Guard का क्या काम होता है? देखभाल करना. The same job is present for these things, right? You will see here. See in the outside the nucleus you will observe here, right? Okay, now यहाँ इसको तो अभी भूल जाते हैं. Let's forget this thing now. Yeah, so basically we are going to study endoplasmic reticulum, right? Endoplasmic का मतलब क्या होता है? Let's discuss that first, right? So endo is nothing but the intra. Endo means intra, अंदर के side, right? Endo means intra, अंदर के side. You will observe here. Yeah, there is an endoplasmic reticulum, right? Then plasmic, the main word, plasmic, nothing but plasma. So, and the reticulum, the word reticulum says about the network. You can see here the network, right? These are networks. They are actually, how they appear like something like this way. They appear something like this, okay? And there is a nucleus over here. So there is a nucleus. Yeah, here you can see there is a nucleus, and there is a endoplasmic reticulum covering here, right? This reddish part, if you will see. So these are nothing but what? So these are nothing but your endoplasmic reticulum, right? तो क्या इनका काम होता है? Synthesis करना किस चीज़ की? Whether it is of proteins or it is of lipids, right? Okay. Then तो यहाँ पे तब अगर मैं सारे वर्ड्स को जोड़ूँ, endoplasmic reticulum, what does it mean? It means intraplasma network. So there is a network present of plasma, there is a network, and उनके ऊपर भी कवरिंग होती है. Yes, they are double bounded, right? They are double bounded. So in this we have two types. दो types आ जाते हैं, endoplasmic reticulum rough and smooth, right? दो टाइप से जाते हैं. देखो डिटेल में हम तो पढ़ने ही वाले, बट वन थिंग आई विल टेल यू. रफ का मतलब क्या होता है कि देयर विल बी समथिंग स्पोर्ट्स टाइप समथिंग, राइट? कोई ऐसे डॉट स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे डॉट उसके ऊपर. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी रफ. देखो रफ हम कभी कब कहते हैं? व्हेन द थिंग विच इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट और वेरी मतलब टच से बहुत अजीब सा जो वो होता है, फीलिंग आती है, डिफरेंट समथिंग वियर्ड काइंड ऑफ फीलिंग, राइट? दैट इज़ योर वॉट? दैट्स योर roughness, right? Same way another we have, that is smooth endoplasmic reticulum. Smooth, it will be very much soft. Let's discuss it very detail, okay? यहाँ पे किसने डिस्कवर किया था ये endoplasmic reticulum? That was nothing but Potter. Remember the word Harry Potter है, right? So remember the word Harry Potter, and same way how Harry Potter, not the Harry Potter actually discovered it, but there is a scientist named as Potter, surname named as Potter, who discovered in 1945. See, you can remember with the keywords which I am telling you right now. I'm going to tell you a keyword from which you can understand, you can remember it from, सालों तक तुम्हें ये याद रहेगा. See, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम किसने बनाया? हमें पता है, हैरी पॉटर नाम का एक इंसान था जो बुक्स लिखते थे, बहुत फेमस स्टोरीज बुक्स लिखता था. सो पॉटर उसका पॉटर हो गया. एंड व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, हमें 1947 में हमें आज़ादी मिली, राइट? तो 2 साल पहले ही इन्होंने ये डिस्कवरी कर दी थी. किसने? पॉटर ने की थी. कब? 1945 में, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट slide. See, this is how our endoplasmic reticulum actually look like. You will see, yes, there are cisternae. Yes, there are cisternae present over here. Okay, we will do in detail. Let's move to the next slide first. Yeah, now let's do the functions of ER. There is an ER over here. यहाँ पे एक ER है. ER is nothing but your endoplasmic reticulum, right? Okay, so यहाँ पे wait, I will explain you with these structures. Let me first explain you the structural wise, and then I will make you understand the functions of it, right? यहाँ पे सब देखो, this is a nucleus. There is a nucleus present over here, right? And there is inside that we have a nucleolus. Nucleolus के पास क्या होता है? DNA होता है in the form of chromosomes. Sorry, chromosomes in the form of DNA, right? किसके अंदर रहता है वो? nucleolus के अंदर होता है, ठीक है? Now ये जो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि न्यूक्लियस के बाहर देयर इज समथिंग दिस लाइक स्ट्रक्चर्स, लाइक दीज लाइक स्ट्रक्चर्स. कैन यू सी दीज स्ट्रक्चर्स योर
here. See the words which I'm saying, sisters, sorry, sisternae, right? So you will see there are something like disc like structures. यहाँ पे डिस्क जैसा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट? दीज स्ट्रक्चर्स, द एंड्स ऑफ दिस इज नथिंग बट योर सिस्टर ने। ये जो एंड्स आपको दिख रहे हैं, दीज एंड्स एंड दीज एंड, ठीक है, ये दोनों जो एंड है वो क्या है? सिस्टर ने है। इसे क्या कहते हैं? सिस्टर ने कहते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इनर पार्ट, दिस कलरलेस, आई मीन कलरफुल, दिस ऑरेंजिश का जो दिखेगा, राइट, ये ऑरेंज वाला क्या है? ल्यूमन है, ठीक है। इसको हम इंट्रा ल्यूमन भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। स्पेस टाइम ऑफ स्पेशियस। अब कोई भी जो भी प्रोटीन्स हो या लिपिड्स हो, देखो जो रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, सी दीज आर रफ वाल, ये रफ वाले हैं, ये स्मूथ वाले हैं। क्या किससे पता चल रहा है कि ये रफ है, ये स्मूथ है? सी द राइबोसोम्स विच आर, उनके ऊपर जो गड़े हुए हैं, द राइबोसोम्स विच यू विल सी, वेट अ मिनट, या द राइबोसोम्स विच यू विल सी ऑन देम, ठीक है। राइबोसोम्स जो आपको दिख रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि दे आर रफ। सी द स्पाइस, लुकिंग एट द स्ट्रक्चर वी कम टू नो इट्स सो मच रफ, राइट। उसको टच करेंगे तो कितना वो रफली लगेगा, राइट। जैसे हमारे पास याद है जो बीड्स होते हैं, बीड्स, राइट, वो बीड्स कैसे होते हैं कि व्हेन एवर वी टच देम, राइट, अगर बहुत सारे बीड्स को ऐसे साथ में से अरेंज करके ऐसे रख दो, एंड व्हेन एवर वी टच ऑन देम, हमें कितना रफनेस का फीलिंग आता है, राइट, वी फील समथिंग रफ काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है? दीज आर ऑल, मतलब इसमें ये सारी चीज़ें क्या होती है? दीज आर ऑल राइबोसोम्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ वाले में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, बट इसमें जो सॉरी, इसमें एब्सेंट होते हैं स्मूथ वाले में, बट यहाँ पे जो है रफ वाला, उसमें क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिस कारण उसे रफ बनाते हैं। अब राइबोसोम्स है तो राइबोसोम्स क्या कहलाता है? राइबोसोम्स, द क्वेश्चन, ओके, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग इज, राइबोसोम्स क्या करता है? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या काम होता है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस करना। हिंट मिल ही गया। तो मतलब रफ का क्या काम है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करके आगे भेजना। तो यहाँ से अगर प्रोटीन्स आ रही हैं, mRNA, मैसेंजर RNA लेके आ रहा है यहाँ से, राइट, यहाँ पे ना ऐसे टाइम कम समथिंग लाइक दिस, वेट आई विल शो यू इन सम डिफरेंट पिक्चर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। वेट, यस, जस्ट वेट अ मिनट, या यार यू विल सी, यहाँ पे देखो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, उसके ऊपर न्यूक्लियर पोर लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिख रहा है, दिस वाला एरिया, यू विल सी देयर इज, इट्स समथिंग लाइक दिस इज टोटली क्लोज्ड, देयर इज समथिंग लाइक यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ये जो बॉक्स दिख रहा है इधर से वो ऐसे करके निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, एंड देन दे आर मेकिंग दी सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो ऐसे यहाँ से जो निकलते हैं, दिस इज नथिंग बट योर इंट्रासेल्युलर स्पेस, ठीक है। ये क्या है? इंट्रासेल्युलर स्पेस है, सॉरी नॉट इंट्रासेल्युलर स्पेस, इट्स अ पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है ये। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या काम आता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहाँ से जो भी प्रोटीन्स निकले या जो भी मैसेंजर आने जो भी लेके आता है, ठीक है, वो सारे यहाँ से कैरीड आउट होते हैं। यहाँ से जो होते हैं क्या होते हैं? यहाँ से सब कैरीड आउट होते हैं, एंड फिर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म हुए हैं, ठीक है, जो सैक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, अब यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, ठीक है, यहाँ से ये जो ल्यूमन है ऑरेंज टाइप, यहाँ से ऐसे निकल के पजल सॉल्व कर करके और बाद में जो प्रोटीन्स होते हैं, बिकॉज उनके ऊपर ये जो सिस्टर ने, एवरी सिंगल सिस्टर ने कंटेन्स द ऑफ रफ ER कंटेन्स द राइबोसोम, सबके पास राइबोसोम स्टडेड है, राइट। तो क्या है, यहाँ से पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, वहाँ से वो निकल रहा है, एंड फाइनली क्या होता है कि नाउ ऐसे है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे राइबोसोम्स है, या तो यहाँ पे वो ऐसे करके एंड दे विल रिमूव लाइक बडिंग, ठीक है, वो बड आउट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सी और यहाँ पे ये है, इधर से सिस्टर ने ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके वो बड आउट हो गया। बड आउट मतलब जैसे बर्ड्स निकलते हैं ना, ऐसे करके वो यहाँ से फिर ऐसे निकले, ऐसे होगा, एंड व्हेन फाइनली जो है वो कैसा बन जाएगा? वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेट मी क्लियर एवरीथिंग, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर बेटर वे, ओके, वेट अ मिनट, या तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है इसने ऐसा किया, ऐसा बनाया, और फाइनली वो कैसा बन जाएगा? वो निकल के पूरा ऐसा हो जाएगा। उसके अंदर क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, प्रोटीन्स, क्योंकि राइबोसोम्स है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, इसके लिए प्रोटीन्स उसके अंदर होंगे। आगे क्या होगा? सो लेट्स सी, तो यहाँ पे राइबोसोम्स निकले, उसके अंदर प्रोटीन्स कंटेंट है, राइट। तो यहाँ पे प्रोटीन्स निकले, अब वो आगे वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू जो है अपना अलग अलग ऑर्गेनल्स तक वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। नाउ वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज दैट कि यहाँ पे सी द गैप, इफ यू विल सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं ऐसा लेके जाऊँ, वेट आई विल शो यू सम डिफरेंट इमेज, राइट, वेट अ मिनट, या तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, सपोज इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, सपोज आई एम डूइंग लाइक समथिंग लाइक दिस, तो ये तो हो गया, ये सारे जो हो गए, ये हो गए हमारे सिस्टरने, राइट, ये सिस्टरने हो गए। बट वॉट अबाउट दीज स्पेसेस? ये स्पेस जो हैं, ये जो स्पेशियस है यहाँ पे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम
राइट, देयर शुड बी समथिंग नो जिससे हम कुछ कह सके उसे. सो दैट इज दे आर नथिंग बट द सिस्टर्नल स्पेस. क्या कहते हैं हम उसे? सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं. और वो दो सिस्टर्नल्स के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज़ योर सिस्टर्नल स्पेस. ठीक है, अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड और व्हाट आई मीन टू से, क्या मैंने बताना चाह रही थी. ठीक है, ओके देन अभी हमने बात कर लिया रफ ईआर के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्मूथ ईआर. स्मूथ ईआर के बारे में भी जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. वी शुड नो स्मूथ ईआर के बारे में भी, राइट. ओके, सो स्मूथ ईआर का क्या फंक्शन होता है? वो लिपिड्स फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? वो लिपिड्स फॉर्म करता है. लिपिड्स मतलब क्या, राइट? फॉर न्यू पीपल, लिपिड्स होते हैं जो फैट्स कैरी आउट करते हैं. क्या कैरी आउट करते हैं? फैट्स. एक मिनट, यहाँ पे नहीं दिखेगा ना ब्लैक. ओके, लेट मी टेक द रेड इटसेल्फ. तो यहाँ पे क्या कैरी आउट करेंगे? वो फैट्स ही लेंगे. फैट्स को फैट्स जो करवाते हैं ना, फैट्स जिनके पास होती है वो लिपिड्स कहलाते हैं. प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड्स कैरी आउट होते हैं जिनके पास होते हैं. ठीक है, ओके. तो स्मूथ के पास ना राइबोसोम्स है. तो अगर राइबोसोम्स नहीं, राइबोसोम्स का काम ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना. अगर राइबोसोम्स इनके पास नहीं है, किनके पास नहीं है? अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं है तो क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? यहाँ से कुछ ना कुछ तो मैसेंजर आने लेके आएगा ना इनके पास. तो मैसेंजर आने क्या लेके आएगा? इनके पास कंटेंट तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम्स है तो ये प्रोटीन बना लेते हैं. लेकिन यहाँ पे लिपिड्स, आई मीन यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है तो वो लिपिड्स बना लेंगे. क्या बना लेंगे? लिपिड्स बना लेंगे. सी दीज स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स, राइट. अंडरस्टूड? ओके फाइन. ओके, लेट्स मूव टू द पार्ट फंक्शंस ऑफ ER. देख लेते हैं जल्दी से. देखो यहाँ पे ऐसे बर्ड आउट हो रहे हैं और बर्ड आउट होके वो फाइनली क्या बन रहे हैं? एक पूरा स्ट्रक्चर बना के एंड वो आगे का प्रोसेस चालू कर देते हैं, राइट. ओके, तो यहाँ पे क्या पहला काम क्या होता है कि प्रोटीन, ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स कहलाते हैं. सी दीज आर द सिक्रेटरी प्रोटीन्स. क्यों? बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम्स. दैट्स वाई वो क्या करते हैं? दे सिक्रेट द प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन की थ्रू ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं. ठीक है, देन अनदर पॉइंट सेज दैट इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. इज इट करेक्ट? Are you all agree with the point which I said just now? कि क्या है? They are integrals first of all, and they are the integrins proteins into the plasma membrane. They integrate the proteins into the plasma membrane. ठीक है, कहाँ से होता है ये? Yes, with the help of nucleus. nucleus की उधर से निकलता है something, and then वो ये proteins बन के and then वो finally जो है बर्ड आउट हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज वेसिकल्स, राइट. वेसिकल्स के थ्रू वो सारे ऑर्गेनल्स के पास जाता है. थर्ड पॉइंट, फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द ER ल्यूमेन. फोल्डिंग या मॉडिफिकेशन जो भी करना हो किस में होगा? ER ल्यूमेन में होगा. ल्यूमेन हमने देखा था, वो दोनों के जो ऑरेंज टाइप हमने देखा था, राइट. Those are what? Lumens. Synthesis of phospholipids and steroids of the cytosolic side of the ER membrane. तो यहाँ पे क्या होता है? सिंथेसिस फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स का सिंथेसाइज होता है. स्टीरॉइड्स जो होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ लिपिड्स. ठीक है, लिपिड्स के अंदर जो टाइप्स आते हैं वो स्टीरॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ लिपिड्स. ठीक है, तो ये सारे को क्या करते हैं? वो सिंथेसिस करते हैं. कौन करता है सिंथेसिस? येस, सिंथेसिस डज द ER, endoplasmic reticulum, right. Then what else they do? What's the other function they do? Does they perform only this much? No, there is a function of regulation, regulated. So what they do? They regulate the calcium ions. ओके, कैल्शियम आयंस को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं ल्यूमेन में, एंड फिर क्या करते हैं? उसको रेगुलेट करते हैं, रिलीज कर देते हैं साइटोसोल में. ठीक है, साइटोसोल में करते. साइटोसोल क्या है? तो ये इट्स अ मैट्रिक्स. जैसे साइटोप्लाज्म कैसा होता है, सेम लाइक इज साइटोसोल. साइटोसोल इज अ लिक्विडी फ्लूइडिटी समथिंग काइंड ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, जस्ट लाइक योर साइटोप्लाज्म, इट्स अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स पता है ना, जो भी लिक्विडिटी काइंड ऑफ थिंग होती है, दैट वी कॉल इट एज मैट्रिक्स. तो साइटोसोल भी वही होते हैं. वेर यू ऑल विल ऑब्जर्व दिस, यू कैन ऑब्जर्व इन दिस, आइदर यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी ये दिख जाते हैं. द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई. ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है. मेटाबॉलिज्म पता है ना क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन या फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. सेल्स को ब्रेक करता है या न्यू सेल्स बनाता है, राइट. दैट इज कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. यस, दीज हैव टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड anabolism. Anabolism मतलब formation and formation of new cells, and catabolism मतलब breaking down of new cells. ठीक है, या breaking down of old cells. Fine. Can we move to the next slide? What the point does it says? There are two distinct regions of ER: smooth ER which lacks chromosomes, rough ER with ribosomes studding its surface. देखो कितना अच्छा चमक रहा है, लाइट. मैंने आपको देखो बैकग्राउंड मैंने इसका रखा है यहाँ पे. यहाँ पे ये जो है ये पार्ट्स, दीज आर व्हाट? सिस्टर्ने. ये सब सिस्टर्ने हैं. यहाँ पे तो ऑरेंज गोल्डन टाइप के बॉल्स लाइक दिख रहे हैं, ये क्या है? ये राइबोसोम्स है. ठीक है, एंड सी ईयर द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ओवर ईयर. सी द ब्लूइश टाइप से आपको दिखेगा. दीज सी ईयर, ये प्रोटीन्स यहाँ पे बन रहे हैं. यहाँ पे सी ईयर द प्रोटीन्स फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. इनके अंदर यहाँ पे ये दीज आर द ल्यूमेंस प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टूड दिस स्लाइड?
ठीक है। ओके, सी यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो है ऐसे करके दे हैव अ पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जहाँ से जो भी मटेरियल्स होते हैं ये इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड देन फाइनली इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, फाइन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ structure and function. Again let's talk about their functions in detail now. Let's first go to the structures. तो क्या है ये, first of all they are double membrane, ठीक है, इनके पास नेटवर्क लाइक समथिंग है, देयर इज अ नेटवर्क लाइक समथिंग, राइट, एंड क्या और व्हाट एल्स दे आर सेइंग दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म इन अ सेल, हर जगह वो फैले हुए हैं, कौन, ये हम पूरा साइटोप्लाज्म में ये फैले हुए हैं। लेट्स लुक आउट द सेकंड पॉइंट, इट इज कंटिन्यूस विद द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑन द आउटसाइड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। सो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है आउटसाइड भी प्रेजेंट, आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर प्रेजेंट। सी हाउ आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द, सी यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसके आगे दे आर प्रेजेंट, एंड ये पूरा सेल है तो they are present outside the nuclear membrane and inside the plasma membrane. Understood the point? क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, राइट? ओके, एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन, फाइन। Okay, let's look out the third point. At its outer ends, endoplasmic reticulum connects itself विद द सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर एंड की तरफ, बाहर की तरफ क्या कनेक्ट करता है, वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ को कनेक्ट करता है, फिर आई ऑलरेडी सेड। एट द इनर एंड इट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ। इट अपीयर्स रफ लाइक पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट एंड अपीयर्स स्मूथ विदाउट देम। अंडरस्टूड, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द फंक्शंस। इट्स मेन फंक्शन इज टू परफॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। तो ये क्या कहलाता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि सारा जो मेन प्रोसेस इसके थ्रू ही होता है, एंड देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियॉन्स में जाता है या आगे के सेल ऑर्गेनल्स हो जाते हैं। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर, विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू ऑल, राइट? देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, राइबोसोम्स है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, राइबोसोम्स नहीं है तो लिपिड सिंथेसाइज करेगा। लिपिड्स करेगा किसमें, तो लिपिड्स करेगा हमारे स्मूथ में। अगर प्रोटीन्स हैं तो किसमें सिंथेसाइज, आई मीन कहाँ पे होगा, ये रफ में, ठीक है। सो सिंथेसाइज ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच हेल्प्स इन रीजनरेटिंग न्यू सेल मेम्ब्रेन्स। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो अगर जब दोनों सिंथेसाइज होते हैं तो नया सेल मेम्ब्रेन बनता है, विच इज कॉल्ड एज बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोजेनेसिस। इट्स मीन्स दैट जनरेशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय लिविंग मैटर, फाइन, ओके। So have you all understood what are the structural and what are the functions of endoplasmic reticulum, right? Have you all understood? Yes? Comment me down right now. Okay, let's move to the next slide right now. Okay, let's move to the next slide. Okay, here's a slide of rough endoplasmic reticulum. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है rough endoplasmic reticulum. Now let's be very quick. तो सबसे पहले क्या होता है कि इसके ऊपर क्या स्टडीड होता है, राइबोसोम स्टडीड होता है। See, I have marked it with another red one, right? Then second thing is इनके पास सिस्टर्ने होते, आई मीन सिस्टर्ने तो दोनों के पास होते हैं, बट इनके पास इन्हें जो ऐसे हमने बताया था, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्ने, राइट? ये इसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे आर द लार्जेस्ट डबल मेम्ब्रेन शीट्स, सॉरी। तो ये सबसे बड़े रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। मतलब ER ही पहली बार डबल मेम्ब्रेन होता है, बट दे आर द लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट्स, ठीक है। येस, वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट कि देयर इज एन आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। उन लोग कहाँ किसके ज़्यादा करीब होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप के करीब होते हैं। आई ऑलरेडी सेड दैट ऑल्सो बिफोर। क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। क्या काम करते हैं, सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। सी द वर्ड्स व्हिच आई एम यूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फाइन। सो सिंथेसिस करते हैं, पैकेजिंग करते हैं प्रोटीन्स का, दैट्स वाई दे आर सेड टू बी एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस किसकी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ribosomes. The ribosomes are the ones which make proteins and hence it is said to be as rough endoplasmic reticulum. तो मेन काम क्या है इसका, सिंथेसिस और पैकेजिंग करवाना, किसका, प्रोटीन्स का। एग्जाम्पल में ले लें तो रुसेल्स बॉडीज ऑफ प्लाज्मा, नीसल्स ग्रैन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। Another very important point की बाइंडिंग साइट ऑफ द राइबोसोम ऑन द RER इज द ट्रांसलोकॉन, ठीक है। जो बाइंडिंग, जहाँ पे बाइंडिंग्स होती हैं राइबोसोम्स की, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसलोकॉन कहते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पिक्चर एज वेल, राइट? हमने ये अच्छे से पढ़ा था, सिस्टर्नेस एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट part of SER, this ER, that is the SER. SER मतलब क्या, absolutely correct, smooth endoplasmic reticulum, right? SER का क्या मतलब होता है, smooth endoplasmic reticulum,
फाइन. ओके, नाउ क्या करता है, विद व्हाट इट हेल्प्स. तो इट हेल्प, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स इनके पास नहीं होते, ठीक है. दे आर द 3 डायमेंशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सी द स्ट्रक्चर, ये कैसे 3 डायमेंशनल है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. ओके ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट इज किस में वो हेल्प करते हैं. येस, दे हेल्प इन मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करवाता है, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करवाता है. नॉट ओनली दिस मच, दे ऑल्सो डिटॉक्सीफाई में भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है. इसको अगर मैं बात करूँ तो जो SER होते हैं ये ज़्यादातर माने ही जाते हैं फॉर लिपिड्स, ठीक है. दे आर मोस्टली नेम्ड इट एज लिपिड्स क्योंकि दे लैक राइबोसोम्स, इनके पास राइबोसोम्स नहीं होता, ठीक है. दे ओनली कंटेन व्हाट, दे कंटेन्स द लिपिड्स, आई मीन दे सिंथेसाइज द लिपिड्स. एग्जाम्पल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल सी द मेमेलियन लिवर, ठीक है, mammalian liver and the gonad cells. These are the examples where these SER is mostly found out. Okay, understood. These are the main mammalian liver and gonad cells. Then another very important point, please mark it down, that क्या करता है वो, इट ऑल्सो सिंथेसाइजेज फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर्स होते हैं. हम उसके बारे में हम जब जब हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल करेंगे दैट टाइम वी आर गोइंग टू डू इन डीपली व्हाट इज फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स जस्ट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि ये एक बाइलेयर्स होते हैं. बाइलेयर मतलब क्या कि 2 लेयर वाले होते हैं. ऊपर भी लिपिड्स पाए जाते हैं, नीचे भी लिपिड्स पाए जाते हैं, एंड बीच में जो होते हैं प्रोटीन्स ये होते हैं, वो बॉम्बार्डेड होते हैं. क्या होते हैं बीच में, क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. येस, दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक एंड दिस आर कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक, ठीक है. ये वाटर लविंग है, फिर वाटर हिटिंग है. ओके, चलो इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे व्हेन वी विल डू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, मतलब ये चैप्टर इज़ लाइक यू नो बहुत इंटरेस्ट है. इट्स वेरी फैसिनेटिंग चैप्टर, राइट. ओके, नाउ इट ऑल्सो सिक्रीट्स. वॉट डज इट सिक्रीट्स, इट सिक्रीट्स द वेरियस प्रोडक्ट्स, ठीक है. बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो होते हैं सेल्स के अंदर वो सभी सिक्रीट करता है. देन such as see the examples, again we have the examples that are of ovaries, testes, skin oil glands, right. So these are of you know इस सब में ज़्यादातर स्मूथ ER पाए जाते हैं, ठीक है. ज़्यादा का जो टाइम जो होता है ये सब में पाए जाते हैं. Now the very last slide, I mean very second last slide. Let's now differentiate between SER and RER. दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं जल्दी, ठीक है. ओके, सो क्या होता है यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है ऐसे मिस्ड मैच है, ठीक है. ये इधर आएगा, ये इधर आएगा. रफ ER हैज़ राइबोसोम्स बट SER do not have ribosomes, right. Then another second most point क्या है. Okay, so SER found near the cell membrane and found near the cytoplasm. Originates from rough ER by shedding the ribosomes. Originates from nuclear membranes. Mainly composed of tubules. ज़्यादा tubules के बने रहते हैं. ये mainly composed of cisternae. इनमें आप देखोगे ऐसे tube-like structures ज़्यादा find out होते हैं. इनमें cisternae ओके, जब हम वी कॉल इट एज ट्यूब्स की तरह दिखते हैं, ठीक है. इनके सिस्टर्न इसलिए बोलते हैं हमने बिकॉज यहाँ पे राइबोसोम्स भी क्या है, उस पर बॉम्बार्डेड है, ठीक है, स्टार्टेड है उनके ऊपर. द वर्ड्स विच आई एम यूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन सिंथेसाइज एंड स्टोर प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को स्टोर करके रखते हैं. दिस वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर इसको कौन सिंथेसाइज एंड स्टोर करेगा, लिपिड्स ऑफ कोर्स, राइट. And also store proteins mainly present in lipid forming cells, and these are RER is mainly present in forming protein cells, ठीक है. तो ये सब बहुत हो गए. अब बहुत हमने पढ़ लिया अबाउट SER RER. बेसिकली हमने यूकैरियोटिक सेल जो था, राइट, यूकैरियोटिक जो सेल था उसका हमने ये जो वाला जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया, राइट. हमने और क्या कवर अप किया, हमने मेन कॉन्सेप्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी हमने कवर अप कर लिया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट नथिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक 2 विच इज़ नथिंग बट योर सेल मेम्ब्रेन. हम किसके बारे में नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन्स मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, सेल मेम्ब्रेन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है. ये सारी हम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जानेंगे और जिसके साथ जोड़ी में रहेगा सेल वॉल, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स वेरी मच. एंड if you have any doubt please comment down and do like, share and very important thing is subscribe. ये तीनों चीज़ कर दो, I will be very much happy, ठीक है. ये तीनों चीज़ कर दो, like, share and subscribe, I will be very much happy. So let's meet you in the next video. Till then, thank you, take care and bye bye, and do check out my another channel.
ठीक है, कुकिंग एंड फन, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब देयर टू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को द लॉजिक ऑफ स्टडी। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे ट्यून्ड, ओके।